reason, may I begin? Please allow me to begin by thanking Raghav Sahib for coordinating and organizing such a valuable session on series of webinar series on Kabaddi coaching. And I know that this is only the start. There will be many more to follow. So thank you, Raghav Sahib. DG Sahib, Sri Sandeep Pradhan, I have always been the beneficiary of his encouragement and support ever since we went to Ahmedabad exploring the possibility of Kabaddi World Cup 2016, and I was of course organizing secretary of the World Cup event under the auspices of AKFI and IKF, and DG Sai was so influential in making it happen. And one of the best things about this series of webinar, Raghav Sahib, was the personal presence and the kind words stated by Honorable Minister Shri Kiren Rijiju. He has been steadfast, consistent, and always very affirmative in talking about Mission Olympics for Kabaddi. मतलब जब रिजिजू साहब कबड्डी की बात करते हैं तो एक मिशन ओलंपिक्स का सपना के बारे में जरूर बात करते हैं और उसकी योजना कैसे बनेगी उसका भी कुछ उल्लेख करते हैं. Of all the sports ministers that I have had the fortune of working, Shri Rijiju has been very consistent in his support for Kabaddi. और अगर कोविड के बाद कबड्डी का फ्यूचर है, if there is a future for Kabaddi after COVID, a Mission Olympics will be central to it for the growth of Kabaddi, for its continuing emergence as a modern sport. Which brings us to the present session, today's session, with which under your kind support, Sunil and I will handle. Why communication is going to be very important for Kabaddi? मतलब communication कबड्डी का किसी भी खेल की कोचिंग के लिए communication revolution होने वाला है because of COVID. There will be sport the way we knew it before COVID. There will be sport which will happen after COVID. मतलब कि हम सब लोग, all of us, in every way of life, in every walk of life, we are seeing the profound impact of COVID. COVID हमें ऐसा प्रभावित कर रहा है जिसमें हमारे सोच के ढंग, हमारे चलन के ढंग, हमारे मतलब कि जीवन का हर चीज का ढंग वो हमेशा के लिए बदलने वाला है. मगर स्पोर्ट के ऊपर एक खास इम्पैक्ट होने वाला है. और मतलब कि और ये सब पूरे स्पोर्ट जगत में, in the entire world of sport, we can already see the challenge that COVID is posing to us. What will happen is, of course, sport कैसे खेला जाता है, कैसे देखा जाता है, उसके कंज्यूमर कैसे आते हैं, उसके फैन कैसे आते हैं, ये सब बदले. पर शुरुआत कहाँ पे होगी? शुरुआत कोचिंग से होगी, क्योंकि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में स्पोर्ट्स की कोचिंग कैसे होती है, स्पोर्ट्स कैसे होती है, और वो कोचिंग की कई सिचुएशंस जो एसेंशियल निहित समझी जाती हैं कोचिंग में, उस पर कैसे नया कम्युनिकेशन की क्या मांग होती है या क्या उसकी अपॉर्चुनिटी होती है, वो सब पूरे स्पोर्ट में तो आएगा ही, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में ज्यादा आएगा. और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट से ज्यादा मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा वहां आएगा जहां किसी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट को हमने बड़ा स्पोर्ट बना दिया, जैसे कबड्डी है. इनफैक्ट ये एक ढंग का सत्य है कि इंडिया में जो भी इंडोर स्पोर्ट किया जाता है वो प्रो कबड्डी से इंस्पिरेशन लेता है. मतलब शुरुआत से लेके अंत तक कंटेंट, खेल, कंपटीशन सब में जो पहल, द इनिशिएटिव्स ऑफ प्रो कबड्डी आर टेकन अप बाय एनी अदर स्पोर्ट जो इंडोर स्पोर्ट आजकल कर रहे हैं. और यही अपॉर्चुनिटी हमारे पास कबड्डी में है. अब कोचिंग बदलेगी और कोचिंग का ढंग और कोचिंग को कम्युनिकेट करने का ढंग मतलब कि पूरे के पूरे रूप से बदलेगी. और मतलब कि आप ये भी देखिए कि
क्या क्या बदलने वाला है आपकी एकेडमी। हमने एकेडमीज की बात कर रहे हैं, हम लोग एकेडमीज बदलेंगी, कोचिंग सेंटर्स बदलेंगे, कोचिंग कैंप्स बदलेंगे, ट्रेनिंग सेशंस बदलेंगे, जिस अवधि के लिए टीम एक साथ होती है एक किसी स्थान पे वो बदलेगा। और कई मतलब इनमें से कुछ एक ढंग का कम्युनिकेशन का चेंज, कोचेस को कम्युनिकेट करने की जरूरत तो बदल रही थी, क्योंकि हम सब मिलकर कबड्डी को एक modern sport, we were able to make kabaddi, to show kabaddi as a modern sport, as a big sport with big following, big consumption to media, teams, players, new team owners, new team managements. A lot of it was changing already, but now because of the way we'll have to do conduct a sport, all of it is, there will be a totally new generation of change required, particularly the way the coaches communicate. इसमें ये मतलब नहीं है कि कोचेस की स्किल, उनका कैपेसिटी, उनका एक्सपीरियंस, उनकी इनसाइट इररेलेवेंट हो जाएगी. देयर स्किल, देयर experience, their knowledge will always stay relevant. But the way they impart it, वो कैसे दूसरे को प्रदान करते हैं, how they share their knowledge, how they share their training, that is going to change very substantially. Everybody has become familiar with the word social distancing. अब मैं सही में बता रहा हूँ, ये my familiarity of the word social distancing is not more than 90 days old. It is less than 100 days old. हमें कबड्डी में कई कोचेस, कई खिलाड़ियों को 50-60 दिन भी नहीं होंगे सोशल डिस्टेंसिंग को सुने हुए. But the fact is, distance coaching is going to become very, very important. और आप for all the reasons I mentioned, it will be so कि आपके पास, और अगर एक साथ है कि अगर distance coaching is going to become important, then new communication technologies will become very important. You will have to learn जो मतलब अभी तक तो हम देखते हैं कि कोचेज, और अभी अगर मतलब मुझे अलाउ करें तो हम सब जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, वो भी हम दिखा रहे हैं कि हम न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से ज्यादा तो पीछे. क्योंकि जूम पे इस तरह का वेबिनार पहली बार कबड्डी के लिए किया गया. ये पहल साई की है जो मतलब एक ढंग से एक शुरुआत है, बाद में नींव साबित हो. It will be the foundation for the way such training, such knowledge sharing is conducted in the future. But what coaches will have to learn is how to communicate over distance, how to communicate across various times, और उसके लिए हम लोगों को टेक्नोलॉजी जो भी है वो उसकी we will have to be very willing to embrace it. More importantly, we should be prepared, our coaches should be prepared to have coaching partners also, जिनके साथ वो ये टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी कोचिंग को एफिशिएंसी बढ़ा पाए. सबसे ज्यादा जो एक प्रोफाउंड चेंज आएगा, जो मैंने शायद सवाल नटराज साहब से पूछा था, कुछ सोच समझ के पूछा था, वीडियो ट्रेनिंग इज गोइंग टू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ. और उसमें ये कोविड के पहले भी कबड्डी वीडियो ट्रेनिंग में जरा तो पहले पीछे हो गई थी. और स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स में तो हर छोटी एकेडमी में जाइए, लोग बैठ के सेल फोन पे अपना वीडियो खींच रहे होते हैं और स्लो मोशन में देख के परफेक्ट कर रहे हैं. दैट डेटा, आप डिस्टेंस पे बात करेंगे तो आप मतलब कि एक जो अगल बगल में बैठे अगर आप कोचिंग कर रहे हैं या कोचिंग ले रहे हैं, उसका एक और ढंग होता है. दूर से बात करेंगे, आपको डेटा, कोचेस विल हैव टू बी वेरी वेरी, डेटा विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन कन्विंसिंग देयर ट्रेनिंग्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. एंड टू सम इट अप अगेन, कबड्डी है, कबड्डी रहेगी, पर कोविड के बाद कबड्डी बदलेगी. और कोविड के बाद हमारा एक भविष्य में क्या हमारी नियति है,
जरूर है, एक ये देश का स्पोर्ट है, विश्व का स्पोर्ट है, हम आर मिनिस्टर टॉक्स ऑफ टेकिंग इट टू द ओलंपिक्स, बट success or failure will be determined by many things, including the way coaches transform themselves, make them relevant to a post-COVID era, and their skills with coaching will be one of the most important strengths they will have to show. With that, I'd like to hand over to you, Sunil. I hope this is useful and sets the context for what you're going to say. Thank you so much, Anupam sir. Thank you so much. इससे पहले कि आज की प्रेजेंटेशन शुरू करें, जस्ट 3 लाइंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स टू स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स. जब राव साहब ने और अनुपम सर ने मुझे रोस्टर भेजा था कि इस तरह से वेबिनार हो रहे हैं और आपको अटेंड करना है, तो मैंने कहा ठीक है, कबड्डी सीखने को मिलेगी. मैंने पैनलिस्ट का नाम देखा, प्रसाद राव, नटराज साहब, अश्विन कुमार जी, राजू भावसा, चारू शर्मा, अनुपम गोस्वामी, कोकर साहब, और उसके बीच में मेरा नाम. तो मुझे लगा कि मैं सूरज को दिया नहीं दिखा सकता, लेकिन राव साहब ने कन्विंस किया कि ये आपका टॉपिक है, आप कम्युनिकेशन जानते हैं, वो जरूर सिखाइए. सो थैंक यू सो मच ये मौका देने के लिए. और राव साहब ने जितनी अभी प्रशंसा की, मुझे नहीं लगता कि मैं उसका 10% भी डिजर्व करता हूं, बट थैंक यू अगेन राव साहब, आपके हमेशा मार्गदर्शन के लिए. कल इनफैक्ट मैं हमारे जो ऑलराउंडर थे जसमेर सिंह गुलिया, उनसे बात कर रहा था, उनका बर्थडे था, उनको फोन किया. थोड़े दिन पहले कृष्ण कुमार हुड्डा साहब से बात हो रही थी, अनूप कुमार से बात हो रही थी, अजय ठाकुर से बात हुई. तो सडनली आई रियलाइज हमारे कितने कबड्डी के प्लेयर हैं, कोच हैं, जो पुलिस में जॉब कर रहे हैं. जसमेर सिंह गुलिया बता रहे थे कि पानीपत करनाल के बीच हाईवे पर वो नाका लगा के बैठे हैं. अजय ठाकुर जो है वो हिमाचल के गांव-गांव में जाके कोविड को लेकर जागृति उत्पन्न कर रहे हैं. तो हमारे जितने कबड्डी स्टार पुलिस की ड्यूटी कर रहे हैं, वो डबल रोल कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं. तो आप सबकी ओर से उन सब का, दूसरे पुलिस ऑफिसर्स का, मेडिकल स्टाफ का, आर्मी का, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मुश्किल हालात में वो सब हमें संभाले हुए हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिछले कुछ दिनों से आई हैव बीन नोटिसिंग, आप भी नोट कर रहे होंगे, दैट देयर हैव बीन सम सजेशंस अबाउट द लैंग्वेज. ऑब्वियसली देयर आर मेनी कोचेस इन इंडिया एंड अब्रॉड हु अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर देन एनी अदर लैंग्वेज, और कुछ ऐसे कोच हैं जिनको हिंदी में बात करना या समझना ज्यादा अच्छा लगता है. सो आई जस्ट वांट टू एश्योर ऑल ऑफ यू, अगर आपने कुछ मिस किया, if you had missed anything in Hindi or something, you haven't missed anything, because whatever Anupam sir has just said, he has almost said everything in both the languages, Hindi and English also, and I will also try to do the same things. My presentation will be typed in English, and I will try to speak in English and Hindi both, so all of you are going to miss nothing. So thank you so much for this opportunity, and of course, let's begin with the presentation. How coaches can communicate better. Okay, first of all, why communicate at all? Communication क्यों करना है, क्यों जरूरी है? हम कबड्डी में बैठे हैं, मुझे राघव साहब पहले बता रहे थे कि और भी तकरीबन 20 खेलों में हम इस तरह के वेबिनार कर रहे हैं. दूसरे खेलों से मुझे हॉकी की याद आती है, क्योंकि सबसे पहले मैंने जो लाइव कमेंट्री जिस खेल की थी वो हॉकी था. हॉकी में कुछ 15-20 साल पहले एक टूर्नामेंट हुआ करता था, उसमें एक टीम थी, उसमें एक कोच साहब थे. उन कोच साहब की खासियत क्या थी? जैसे ही ब्रेक होता था या टाइम आउट होता था, प्लेयर दौड़े दौड़े कोच साहब की तरफ आते थे. कोच साहब मैं राइट इन पे खेल रहा हूं, शुड आई प्ले एट राइट आउट एंड नॉट राइट इन? कोच साहब क्या कहते थे? दूसरा प्लेयर दौड़ के आ रहा है, कोच साहब आई एम प्लेइंग इन द मिडफील्ड, शुड आई प्ले इन द डिफेंस? मैं अपनी पोजीशन चेंज कर लूं? कोच साहब अगले मैच में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? कोच साहब. सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर कोई प्लेयर आके कोच से पूछता है कि मुझे क्या करना है, और कोच साहब कैसे जवाब दिया करते थे? कोच साहब मैं राइट आउट पे खेलूं? कोच साहब मैं मिडफील्ड की जगह डिफेंस में खेलूं? कोच साहब हम 4 की जगह 5 फॉरवर्ड से खेलें? मुझे लगा उनके मुंह में शायद कुछ एक विशेष पदार्थ भरा हुआ था, वो बोलना नहीं चाह रहे थे. मैच से पहले मीटिंग हुआ करती थी, प्लेयर पूछते थे कोच साहब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और कोच साहब कहा करते थे जाओ रौंद दो उस टीम को, जाओ आक्रमण कर दो, जाओ हमला कर दो. तो
इस तरह की अगर स्ट्रेटजी कोई कोच साहब बताएंगे तो प्लेयर कैसे खेल पाएंगे? इसीलिए कम्युनिकेशन करना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। नाउ, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर वन, कबड्डी इज नो मोर एन इंडियन विलेज स्पोर्ट। कबड्डी अब सिर्फ हमारे गांवों में खेले जाने वाला खेल नहीं रहा है, कबड्डी बड़ा बन चुका है। नंबर टू, टीवी कवरेज ऑफ प्रो कबड्डी लीग, नेशनल्स, एशियन गेम्स जो आप लगातार टीवी पे देखते हैं, कबड्डी बड़ा बन चुका है। स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स भी कवर होते हैं, दे आर आल्सो कवर्ड बाय लोकल मीडिया, सम वेबसाइट्स, सम ऑनलाइन पोर्टल्स। नंबर फोर, you as a coach will have a dialogue with your players. आप अपने कोच से लगातार, अपने प्लेयर से लगातार बात करेंगे, कम्युनिकेशन जरूरी है। उसके बाद मीटिंग विद द एसोसिएशंस एंड ब्रॉडकास्टर्स। जो हमारे प्रो कबड्डी के कोच हैं उन्हें मालूम है कि अनुपम सर के साथ, स्टार स्पोर्ट्स के साथ, राव साहब के साथ कितनी मीटिंग्स उनकी होती है। मीटिंग होगी तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको कम्युनिकेशन का आर्ट, इसकी कला आनी जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, it's a challenge as well as an opportunity for the foreign coaches, क्योंकि अब जो कबड्डी है वो सिर्फ इंडिया का स्पोर्ट नहीं है, it has become truly global now. Point number one, कबड्डी is no more an Indian village sport. भाई कुछ साल पहले कबड्डी हमारे गांवों में थी, हमारे देश की मिट्टी में थी, हमारे दिल में थी, पर टीवी पे नहीं थी। हर जगह थी पर टीवी पे नहीं थी, सिर्फ गांव में खेली जाती थी ज्यादातर। राव साहब बेहतर जानते हैं इन्होंने कहां से कोचिंग शुरू की और कहां तक इसको पहुंचाया। अब कबड्डी गांवों में खेली जाती है, लेकिन शहरों में भी खेली जाती है। यू ऑल्सो वॉच केबीडी जूनियर्स। बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े वर्ल्ड स्कूल्स, इंटरनेशनल स्कूल, मल्टीनेशनल स्कूल के बच्चे, हमें यहाँ तक पता चलता है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और फिल्म स्टार के बच्चे भी अपने स्कूल के प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें केबीडी जूनियर में खेलना है। इट हैज बिकम सो बिग नाउ। टीवी कवरेज ऑफ पीकेएल्स, नेशनल, एशियन गेम्स, आप राकेश कुमार को देख सकते हैं। सबसे लेफ्ट में जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये कबड्डी का मैट नहीं है, ये कबड्डी का मैट हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे ग्राफिक डिजाइनर ने स्टूडियो में तैयार किया था। कबड्डी को मैट से, मिट्टी से मैट पर हम ले आए हैं, मैट से टीवी पर ले आए हैं। एशियन गेम्स कवर हो रहे हैं, नेशनल्स लाइव कवर हो रहे हैं, प्रो कबड्डी लीग आप हर साल देखते हैं, प्री शो होता है, पोस्ट मैच शो होता है, एनालिसिस होते हैं। 2018 में एशियन गेम्स हुआ था, उसमें अनफॉर्चुनेटली इंडियन मेन टीम सेमीफाइनल में हार गई, विमेन टीम फाइनल में हार गई। राव साहब को याद होगा जब 1990 में वो पहला गोल्ड मेडल जीतकर आए थे एशियन गेम्स में, तो अखबारों में छोटी छोटी खबरें आई थी, सिर्फ थोड़ी बहुत खबर आई थी कि 1990 में एक गोल्ड मेडल मिला और वो कबड्डी को मिला। किसी ने इंटरव्यू नहीं किए, किसी ने प्लेयर को स्टार नहीं बनाया। अब 2018 में इंडियन टीम गोल्ड मेडल नहीं जीतती है अनफॉर्चुनेटली। दोनों टीम्स बिना गोल्ड मेडल के वापस आती हैं और अखबारों में इतने बड़े बड़े आर्टिकल्स आते हैं, वेबसाइट्स पर इतना कुछ लिखा जाता है। मुझे खुद याद है, मैं एक टीवी चैनल के लिए एशियन गेम्स कवर कर रहा था। पहले मेन टीम हारी, फिर विमेन टीम हारी। अगले दिन मुझे उन्होंने अपने स्टूडियो में बिठा के 45 मिनट तक डिस्कशन की सिर्फ कबड्डी पर। इंडियन टीम क्यों हारी, क्या कमी रह गई। क्या हम 6 साल पहले ये उम्मीद कर सकते थे कि कबड्डी पर पौने घंटे का, 1 घंटे का शो होगा? आप जो कोचेज हैं, आई एम श्योर आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर से, वेबसाइट से या टीवी चैनल से कॉल आया होगा एनालिसिस करने के लिए। उससे पहले आपने कितने इंटरव्यूज दिए होंगे कि प्रो कबड्डी इतनी बड़ी बन चुकी है, आपने अपने विचार रखे होंगे। कितना कुछ हो चुका है पिछले 6 सालों में, क्योंकि टीवी कवरेज हो रहा है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ना केवल इंटरनेशनल, बल्कि हमारे जो स्टेट लेवल टूर्नामेंट हैं, नेशनल लेवल टूर्नामेंट हैं, वो भी कवर हो रहे हैं। कई बार लोकल मीडिया कवर करती है। मैं एक फ्रेंड ने बताया था कि पुणे में, महाराष्ट्र के और बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे क्लब लेवल टूर्नामेंट होते हैं और जो लोकल मराठी चैनल हैं वो उसको कवर करते हैं। इसी तरह से हरियाणा में कोई 1 करोड़ का टूर्नामेंट हो रहा है, कोई 50 लाख रुपए का टूर्नामेंट हो रहा है, वो वहां की लोकल मीडिया द्वारा या दूसरे लोकल चैनल्स द्वारा कवर किया जाता है। पहले तो नेशनल्स भी कवर नहीं होते थे, एशियन गेम्स भी कवर नहीं होते थे, अब स्टेट लेवल टूर्नामेंट भी कवर हो चुके हैं, which shows how big this sport of kabaddi has become. Now the dialogue with players. On the left you can see Dr. Sunil Dabas, our women's team coach, talking to her players. On the right is Mr. Ram Meher Singh, former Asian Games gold medalist, talking to his champion players in the Patna Pirates. जब आप कोच हैं तो अपने खिलाड़ी से बात किए बिना तो आप रह ही नहीं सकते। तो डायलॉग प्लेयर से लगातार होना ही होना है, वो जरूरी है, उससे छुटकारा नहीं हो सकता। देन
you will be meeting with the authorities and the broadcasters. लेफ्ट में देखिए ये हमारे यंग प्रसाद राव साहब है, 1990 में जब गोल्ड मेडल जीत कर लाए थे, 1994 में भी जीत कर आए थे। उसके बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी जी से इनकी मुलाकात हुई थी। जब आप एक बड़े मकाम पर पहुंचते हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे, आप सीएम से मिलेंगे, आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलेंगे, आप दूसरी डिग्निटरीज से मिलेंगे, उनके साथ आपको संवाद करना है। You have to communicate with the dignitaries. On the right, you can see two players who have been suspended by Mr. Rao, Shri Anupam Goswami, Charu Sharma Sahab, Technical Director Prasad Rao Sahab. If you are a PKL coach, you will be doing meetings with all these dignitaries, with the AKFI officials, with IKF officials, be it national tournament, PKL or international. You'll be meeting with Mr. Goswami and other dignitaries from Star Sports. वहां कम्युनिकेशन ही आपका हथियार है, ऐसे आपका सिर्फ संवाद ही होगा। Now this is one of my favorite slides. Opportunities and challenges for the foreign coaches. प्रो कबड्डी के आने के बाद किस तरह से हमने देखा है कि कबड्डी ग्लोबलाइज हुई है। नंबर वन, कबड्डी हैज गॉन रियली ग्लोबल आफ्टर प्रो कबड्डी लीग, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। आप नीचे देखिए, गुलाम रेजा मजंदरानी, he became the first ever non-Indian coach to win an Asian Games gold medal. उसके अगले सीजन में he was coaching the U Mumbai team. उसके अगले सीजन में गुलाम रेजा साहब was coaching तेलुगु टाइटंस टीम। लेफ्ट की पिक्चर देखिए, आपको बिल्कुल एंड में सोमप्रूच फोनचू दिखाई देंगे, जो थाईलैंड की मेन और वुमेन टीम के कोच हैं। इनका बेटा टिम फोनचू आपको वर्ल्ड कप में दिखाई दिया था। सो टीम्स लाइक ईरान, कोरिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, कीनिया, जापान, दे हैव इम्प्रेस्ड ऑल ऑफ अस। इनफैक्ट एक टीम का नाम मैं लिखना भूल गया, चाइनीज ताइपे। 2018 एशियन गेम्स में मैं कमेंट्री कर रहा था, तो चाइनीज ताइपे की टीम खेल रही थी ईरान से एक पूल स्टेज मैच में, और मैं देख रहा था कि इनके बेंच पर जो कोच बैठा है, कौन है वो। एक मैच देखा, दो मैच देखा, देन आई रियलाइज्ड ही वाज डेविड साई। David Sai was the player who was with Jaipur Pink Panthers for almost 5 seasons. 5 साल में मैंने और आपने डेविड साई को 5 रेड करते हुए भी नहीं देखा वीवो प्रो कबड्डी में। पर यहां बेंच पर बैठकर कबड्डी सीखकर डेविड साई ने चाइनीज ताइपे में जाके विमेन टीम तैयार की, और वो विमेन टीम 2018 एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में पहुंची। उन्होंने पूल स्टेज में ईरान को हराया था। इतना जबरदस्त कम्युनिकेशन था डेविड साई का। ऑफ कोर्स कीनिया, मिस लेवेंटे रोबुटा हम सब जानते हैं, रामवीर सिंह खोकर साहब उनकी टीम के कोच थे। जापान के प्लेयर प्रो कबड्डी में खेले हैं। बांग्लादेश का तो नेशनल स्पोर्ट है। थाईलैंड की मेन विमेन दोनों टीम्स इंप्रेसिव हैं। कोरिया फाइनल में पहुंचा एशियन गेम्स में, ईरान ने तो खैर कमाल कर ही दिया था। तो कबड्डी हैज बिकम ग्लोबल नाउ। पॉइंट नंबर 3, स्पोर्ट्स एंड लव आल्सो हैव नो लैंग्वेज, बट लर्निंग अ कॉमन लैंग्वेज इज अ मस्ट। अब राव साहब अगर इंडिया में कोचिंग कर रहे हैं, खोकर साहब अगर इंडिया में कोचिंग कर रहे हैं, चाहे नॉर्थ के प्लेयर साउथ को कोच करें, साउथ के प्लेयर नॉर्थ को कोच करें, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सब हिंदी समझते हैं, जानते हैं, और इतने सालों से ये लोग कोचिंग कर रहे हैं कि इनको इंडिया में कोचिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। राव साहब अगर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या फिर श्रीलंका जाते हैं, तो कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश। लेकिन अगर गुलाम रेजा मजंदरानी इंडिया आते हैं, अब ईरान में इंग्लिश ज्यादा प्रचलित नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपको भाषा सीखनी पड़ेगी। कुछ दिन पहले चारू शर्मा साहब ने भी भाषा की सीखने पे बड़ा जोर दिया था, और ये जरूरी है। जैसे आप कोचेस अपने प्लेयर को बताते हैं कि बेटा आपको टो टच करना आता है, आपको हैंड टच करना आता है, आपको किक लगानी आती है, अब बोनस करना भी सीखो, अब डुबकी लगाना भी सीखो, क्योंकि ये स्किल है। उसी तरह आप कोचेस के लिए लैंग्वेज आना भी एक स्किल है। अश्विन कुमार साहब कोरिया के कोच रहे हैं, ईरान के कोच रहे हैं, सुतार साहब ईरान के कोच रहे हैं, शैलजा मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने ईरान की वुमेन टीम को फाइनल जितवा दिया एशियन गेम्स का। आप सबने एक नया स्किल यानी लैंग्वेज डेवलप किया है, तभी आप कम्युनिकेट कर पाए थे, तभी आपकी टीम चैंपियन बनी है। नंबर 4, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कोचिंग स्टाइल्स, प्लेइंग टेक्निक्स हैपन थ्रू दिस। अब जैन कुनली इंडिया आए, पहले सीजन में उन्होंने लगातार बोनस करके अपना नाम रखवा लिया, बोनस ली, तो लोगों को पता चला कि सिर्फ बोनस कर करके आप इतने बड़े प्लेयर बन सकते हैं। अबूजार का आप इंटरव्यू देखिए, यू सी द इंटरव्यूज ऑफ इरानियन डिफेंडर्स, अबूजार, फजल अत्राचली। फजल अत्राचली वाज अ रेडर। अश्विन कुमार साहब ने उस दिन बताया था, अबूजार ने हमारे डिफेंडर्स को देख देख कर नए नए स्किल्स डेवलप किए। ही इज अ कॉर्नर, लेकिन सुरजीत सिंह को देख के उसने ब्लॉक करना भी शुरू कर लिया। दिस इज a magic that happens through this exchange of ideas.
इंडिया के प्लेयर ईरान को सिखाएंगे, ईरान के प्लेयर हमें सिखाएंगे, हम जापान से सीखेंगे, उनको सिखाएंगे, कोरिया से सीखेंगे, उनको सिखाएंगे। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हैपन जब इस तरह से कोचिंग का, जब इस तरह से प्लेयर्स का आदान प्रदान होता है थ्रू कम्युनिकेशन। सो अ बेटर कम्युनिकेशन विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द गेम, कोचिंग टेक्निक एंड द प्लेयर्स। गेम आगे बढ़ेगा, कोचिंग आगे बढ़ेगी, नया नया सीखने को मिलेगा, और उससे क्या होगा, प्लेयर्स का फायदा होगा और कबड्डी का फायदा होगा। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द कम्युनिकेशन। सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज देखिए। ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड इज माय पार्टनर इन क्राइम दादा संजय बनर्जी। सेंटर में बैठे हैं बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, और रेड कोट में जॉर्ज ट्रूली। ये सीजन 7 की फोटो है। अब सारे कोचेस जानते हैं कि सीजन 6 और सीजन 7 में हम आपके साथ मैच पे नहीं थे, ग्राउंड में नहीं थे, ना प्रोड्यूसर ग्राउंड पे थे, ना डायरेक्टर ग्राउंड में थे, ना इंजीनियर ग्राउंड पे थे, ना एक्शन रिप्ले बनाने वाले भाई साहब ग्राउंड पे थे, सिर्फ कैमरा लगा हुआ था। सारी की सारी प्रोडक्शन स्टार स्पोर्ट्स के ऑफिस से हो रही थी। हम लोग कमेंटेटर भी ऑफिस से मौजूद थे। यहीं बैठ के पूरे का पूरा पीकेएल कवर हुआ, यहीं बैठकर कमेंट्री हुई। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी है। इसे कहते हैं रिमोट प्रोडक्शन। कहीं बैठ के हम कहीं का खेल बना सकते हैं, दिखा सकते हैं, कमेंट्री कर सकते हैं, और उतना ही अच्छा हमें टीवी पर देखने को मिलता है जितना ग्राउंड में देखने को मिलता है। क्यों? टेक्नोलॉजी है। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप अपनी कोचिंग में भी कर सकते हैं। नाउ इन सिचुएशंस लाइक कोविड, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी हैज बिकम वाइटल। और अनुपम सर ने बड़े विस्तार से बताया है कि इस तरह से जो आज सिचुएशन है, हम लॉकडाउन की स्थिति में है। मैं पंजाब, अनुपम सर अपने घर पे हैं, राव साहब अपने घर पे हैं, आप सारे कोचेस अपने घरों में हैं across the world, and still we are communicating with each other through technology. So role of technology has become very, very vital. Like we all learn from the senior coaches, it's important that we pass the info. वो जैसे भारत में कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा, जो अपने गुरु से सीखा वो आगे पास कीजिए। जो आपने वेबिनार्स में सीखा, whatever राव साहब, अश्विन कुमार साहब और डॉक्टर सुनील मैम has told you, pass that information. Players should not feel deprived of knowledge because of lockdown. अब संदीप नरवाल है या प्रदीप नरवाल है या पंकज मोहिते है, नितिन तोमर है, रविंदर पहल है, अपने घर में वो वार्म अप तो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत खेल सकते हैं, लेकिन उनको भी फील हो रहा होगा कि कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा। तो उन्हें वंचित मत रखिए, उन्हें कुछ ना कुछ ज्ञान बांटते रहिए। कैसे? लास्ट पॉइंट, sessions with a small bunch of players at regular intervals will help them learn new things and techniques. जिस तरह से आप 400, 500, 600 लोगों के साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये वेबिनार कर रहे हैं, जिस तरह से सीनियर कोचेस हम सबको सिखा रही हैं, उसी तरह से ये ज्ञान आप अपने खिलाड़ियों को पास कीजिए, चाहे वो प्रो कबड्डी के खिलाड़ी हो, चाहे वो आपकी स्टेट टीम के खिलाड़ी हो, डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी हो, क्लब के खिलाड़ी हो, नेशनल प्लेयर हो, स्कूल के खिलाड़ी हो। ज्ञान बटोरिए और बांटिए टेक्नोलॉजी के जरिए। जूम ऐप है और बहुत सारे हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ज्ञान को बहने दीजिए। Now, how do we communicate? Ways to communicate. Number 1, before the game, मैच से पहले आप अपने प्लेयर से इंटरैक्ट करेंगे, of course करेंगे। During the game, you will also talk to the players because it's very important to keep on communicating with your players when the match is on. After the game, of course, you will analyze, you will post-mortem, summarize, review your team's performance. Then TV interviews. Kabaddi has become a very popular sport. So all the big coaches are being interviewed by sports channels, by news channels, by websites, by so many online portals. Media addresses, but there are some post-match press conferences. जितने हमारे प्रो कबड्डी के कोच हैं वो used to हो चुके हैं। हर मैच के बाद आपको मीडिया एड्रेस करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। लास्ट, webinars. So this is a new platform जहां हम communicate करना सीखते हैं। Let's cover them point by point. Before game, see Anup Kumar is talking to his player. Before the game आप क्या करते हैं? You discuss the strategies. आज हम ये करेंगे, आज हम प्रदीप नरवाल को रोकने के लिए चेन लगाएंगे, 2 चेन लगाएंगे, आज हम रविंदर पहल को एंकल होल्ड नहीं करने देंगे, आज हम सुरेंद्र मोहित की जोड़ी को तोड़ेंगे। Whatever strategies you guys make, that happens before the game. That is communication. Second point, one of my favorites, talking to individual players, telling them their role and their importance in the team. Now, I, as a student of kabaddi, I keep on talking to coaches. मैं राव साहब का बहुत सिर खाता हूँ, बहुत परेशान करता हूँ, इनको नटराज साहब को बहुत परेशान करता हूँ मैं। जितने हमारे पीकेएल के कोचेज हैं, मनप्रीत हो या हुड्डा साहब हो, रणधीर सिंह सिरावत हो, भास्करन साहब हो,
के भास्करन, मैं सबसे बात करता हूं कुछ ना कुछ सीखने के लिए, और उन सारे कोचेस ने जो एक बात मुझे कॉमन बताई है, उसमें से एक बात यह है कि मैच से पहले एक एक प्लेयर को अपने अपने रूम में बुलाएंगे, इंडिविजुअल सेशन लेंगे। बेटा रोहित, आज तूने बोनस लेने हैं, बेटा प्रदीप आज तूने डुबकी कम लगानी है और ये ज्यादा करना है, उनका डिफेंस मजबूत है, उनका राइट कॉर्नर मजबूत है, तो हमारा सेकंड रेडर जाके राइट कॉर्नर को आउट करेगा, तुम उसकी तरफ मत जाना। डिफेंस को बुलाएंगे कि आज आपने ये करना है, ये करना है। सो ऑल दीज थिंग्स आर कम्युनिकेटेड बिफोर द गेम, वो आप लोगों को बेहतर पता है, बट द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी गुड, ताकि हर प्लेयर को अपना रोल पता चले, अपनी इंपॉर्टेंस पता चले ड्यूरिंग द गेम। सी द पिक्चर इन द मिडल। आपको सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि ये भगवान राम और विभीषण क्या कर रहे हैं इस स्लाइड के अंदर। आई विल कम बैक टू दैट। 2 पॉइंट है मेरे पास ड्यूरिंग द गेम। 2 तरह की कोचिंग हो सकती है ड्यूरिंग द गेम। फर्स्ट, शाबाश बेटा शेर बन, which translates into English, come on player, be a tiger, come on man, play like a lion. And second, to the point instruction. Now come to the second slide. जब राम रावण युद्ध चल रहा था, हम सभी अभी रामायण देख रहे हैं टीवी पर, दोबारा से भी शुरू हो गई है। राम जी रावण से लड़ाई कर रहे थे, राम जी बाण चलाते थे, रावण का सर कट जाता था, नया सर उगता था, फिर राम जी ने बाण चलाया, फिर सर कट गया, नया सर आया, 10-15 सर कट गए, लेकिन रावण का वध नहीं हुआ। तो विभीषण जी ने क्या किया, उनको कोचिंग दी ड्यूरिंग द गेम। गेम चल रही है, लड़ाई चल रही है दोनों के बीच में, विभीषण जी उड़ के ऊपर गए और राम जी को बताया, प्रभु इनकी नाभि में अमृत है, वहां पे निशाना लगाइए, रावण का वध हो जाएगा। दैट इज टू द पॉइंट इंस्ट्रक्शन। बेटा राइट कॉर्नर लूज है, वहां जाके बोनस कर ले। दिस इज टू द पॉइंट इंस्ट्रक्शन। अब इसी लड़ाई में सुग्रीव भी थे। रामायण में सुग्रीव क्या करते थे, उनकी सेना लड़ती थी और सुग्रीव बोलते थे हर हर महादेव, हर हर महादेव। उससे क्या होगा, जो उनके योद्धा हैं, जो उनके खिलाड़ी हैं, उनका हौसला बढ़ेगा, उनमें जोश आएगा। जो मैंने लिखा था, शाबाश बेटा शेर बन, हौसला बढ़ाते हैं। लेफ्ट में देखिए, ई भास्करन साहब, एडाचेरी भास्करन साहब, वन ऑफ माय फेवरेट कोचेस। सीजन 6 में, सीजन 7 में भास्करन साहब तमिल तलाइवास के कोच थे। अब उनकी टीम में कौन कौन से प्लेयर थे, अजय ठाकुर इंडियन कैप्टन, पद्मश्री अर्जुना अवार्डी, मंजीत छिल्लर अर्जुना अवार्डी, राहुल चौधरी द बिगेस्ट पोस्टर बॉय ऑफ प्रो कबड्डी, मोहित छिल्लर, रण सिंह, कितने अच्छे अच्छे प्लेयर थे। तो ऐसे प्लेयर्स को ड्यूरिंग द गेम आप कैसे कोचिंग देंगे। भास्करन साहब ने क्या किया, आई स्टिल रिमेंबर, एक मैच चल रहा था, राहुल चौधरी ज्यादा अच्छा नहीं खेल रहे थे, भास्करन साहब ने उसे बाहर बुलाया और बोले, ए राहुल तू इतना बड़ा प्लेयर है, देख कमेंटेटर तुझे पोस्टर बॉय कहते हैं, तुझे शोमैन कहते हैं, बेटा तू प्रो कबड्डी का सबसे बड़ा रेडर है, शाबाश बेटा तू मुझे मैच जितवाएगा, जा बेटा जा। कितना अच्छा स्टाइल है। मंजीत छिल्लर को बाहर बुलाया, ए मंजीत तू दुनिया का सबसे अच्छा डिफेंडर है बेटा, यू आर द नंबर 1 ऑलराउंडर ऑफ द वर्ल्ड, यू विल विन दिस मैच फॉर मी, शाबाश पहलवान, जाके शेर बन के खेल। क्या भास्करन साहब ने सही कम्युनिकेशन यूज किया? In my opinion, that was the best way of communication. क्योंकि जब आपके पास लेजेंड प्लेयर्स हों आपकी टीम के अंदर, ड्यूरिंग द गेम आप उनको अगर टो टच करना सिखाएंगे या हैंड टच करना सिखाएंगे, वो अजय ठाकुर को आता है, बोनस लेना राहुल चौधरी को आता है, ब्लॉक करना, डैश करना, डाइव करना मंजीत को आता है। हो सकता है उनका दिन अच्छा ना हो, आउट ऑफ फॉर्म हो, कोई भी रीजन हो, कोच अगर उनको ड्यूरिंग द गेम पिन पॉइंट इंस्ट्रक्शन देनी शुरू कर देंगे तो शायद प्लेयर का बैलेंस ना हो। वहां आपको हर हर महादेव बोलना है, जैसे सुग्रीव ने बोला था, सिर्फ एनकरेज करना है। ई भास्करन साहब ने अपने टीम के खिलाड़ियों के अनुसार जो स्ट्रेटेजी यूज की, परफेक्ट थी। टीम अच्छा नहीं खेल पाई, परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, वो एक अलग बात है, बट भास्करन साहब ने जो शाबाश बेटा शेर बन, ये वाली इंस्ट्रक्शंस दी, इन माय ओपिनियन दैट वाज द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। राइट की स्लाइड देखिए, मनप्रीत सिंह पंजाबी शेर, कोचिंग गुजरात फॉर्चून जायंट्स। सीजन 6 और सीजन 7 में ये टीम फाइनल में पहुंची। टीम में कितने बड़े स्टार थे? 0, कोई बड़ा स्टार नहीं था। सुनील, परवेश, ऋतुराज कोरावी, सचिन तंवर, रोहित गुलिया, इनके नाम तक नहीं सुने थे हम लोगों ने। सिर्फ फजल अबूजार सीजन 6 में थे, कोई बड़ा रेडर नहीं था। अब मनप्रीत कैसे अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन देते हैं? जब भी कोई ब्रेक होता है, टाइम आउट होता है, मनप्रीत का फेवरेट डायलॉग मुझे याद है, बेटा बोनस नहीं देना, बेटा बोनस नहीं देना, वो रेडर आवागा, थारे गेल किक मारेगा, ऐसे डाइव लगानी है।
कि मनप्रीत की टीम नई है, इनएक्सपीरियंस्ड है, युवा है, तो वो पिन पॉइंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बिल्कुल स्पून फीड करते हैं, क्योंकि उनके पास अजय जैसे, राहुल जैसे, मंजीत जैसे प्लेयर नहीं है, तो उनका कम्युनिकेशन करने का तरीका बदला। 2016 वर्ल्ड कप का फाइनल हमें याद है, ईरान 5 पॉइंट से आगे था हाफ टाइम में, बलवान सिंह साहब टीम के कोच थे, उन्होंने क्या अनूप को बोनस करना सिखाया? नहीं सिखाया। अजय ठाकुर को हैंड टच करना सिखाया? नहीं सिखाया। सिर्फ एनकरेज किया, शाबाश बेटा शाबाश, जय हनुमान, भगवान का नाम लेके खेलो, जोश से खेलो, जीतोगे। हम जीत गए क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस्ड प्लेयर थे, उनका तरीका एक था। मनप्रीत के पास एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, वो टू द पॉइंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं। नाउ आफ्टर द गेम, तो राम रावण की दोस्ती हो गई आफ्टर द गेम, और उसके साइड में देखिए डॉक्टर ने एक अपनी छुरी उठाई हुई है। सो आफ्टर द गेम कोचेस डॉक्टर बन जाते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, क्या जीत का कारण था, क्या हार का कारण था। यू एनालाइज द गेम, यू डू द रिव्यू ऑफ द गेम एंड यू रिव्यू द इंडिविजुअल प्लेयर्स परफॉर्मेंस। आज रोहित ने बोनस क्यों नहीं किए, आज प्रदीप की डुबकी क्यों नहीं चली, आज पवन के हनुमान जंप क्यों नहीं लगे, ये आप बेहतर जानते हैं। जो आप गेम के बाद एनालाइज करते हैं, प्लेयर से कम्युनिकेट करते हैं, उसको सिखाते हैं कि बेटा आज तेरी गेम में, तेरी टेक्निक में ये कमी थी, लेकिन ये चीजें गेम के बाद होती हैं। और ये जो अरुण गोविल और अरविंद त्रिवेदी की जो फोटो लगी हुई है हाथ मिलाते की, वो इसलिए मैंने यूज किया है कि गेम के बाद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का होना जरूरी है। ये दोनों एक्टर्स हैं, रामायण की शूटिंग खत्म, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शुरू। तो ये कम्युनिकेशन जो है अपने प्लेयर से भी, कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेला, कोई बात नहीं, होता है, बाद में उससे हाथ मिलाइए, उसकी कंधे पे हाथ रखिए, चाहे डांटिए, बट आफ्टर द गेम। अच्छा, एक और तरीके का कम्युनिकेशन है, मुझे बैठे बैठे प्रसाद राव साहब दिख रहे हैं, याद आया। प्रसाद राव साहब इंडियन टीम के कोच रहे हैं लंबे टाइम तक, तो इन्होंने मुझे एक इंसिडेंट बताया था कि इंडियन टीम का मैच चल रहा है, टीम के कैप्टन थे कोई, प्रसाद राव साहब ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया कि बेटा ऐसे ऐसे करना है, कैप्टन ने नहीं किया, एकदम उलट किया। प्रसाद राव साहब ने टाइम आउट लिया, कैप्टन को सब्स्टिट्यूट करके बेंच पे बिठा लिया, कुछ नहीं कहा, he did not say a word। 2 मिनट बाद साहब ने फिर टाइम आउट लिया, कैप्टन को अंदर भेज दिया। कैप्टन ने वही किया जो राव साहब ने पहले कहा था, he performed better, team won the match। दिस इज साइलेंट कम्युनिकेशन। डांटा नहीं कोच ने, कुछ सिखाया नहीं, टेक्निक नहीं सिखाई, सिर्फ एक मैसेज दिया कि बेटा ड्यूरिंग द गेम आई एम द किंग, आप मेरी बात मानिए। उसने बात मानी, थोड़ी देर से मानी, और उसको रिजल्ट मिला। ये भी एक बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन का तरीका है। नाउ कम टू हैंडलिंग द मीडिया। भाई कबड्डी हैज बिकम अ वेरी वेरी बिग स्पोर्ट। आपको मीडिया एड्रेस करना है, स्पेशली आफ्टर प्रो कबड्डी मैचेस, नेशनल्स में जब आप अपनी टीम को लेके जाते हैं, क्लब लेवल टूर्नामेंट होते हैं, लोकल न्यूज चैनल, नेशनल न्यूज चैनल, इतने सारे नए नए यूट्यूब के पोर्टल खुल गए हैं, वो आपसे बात करेंगे, कोच साहब आज क्या हुआ, कोच साहब टीम क्यों जीती, कोच साहब टीम क्यों हारी। कैसे आप उनको हैंडल करेंगे? नंबर 1, डिप्लोमेसी। कैन यू बी डिप्लोमेटिक? यस। कैन यू स्पीक योर ओन माइंड? दोनों चीजें काम कर सकती हैं। हर किसी कोच का अपना अपना दायरा है। रणधीर सिंह सरावत साहब सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों तरीके यूज करते हैं। यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं, डिप्लोमेटिकली बात कर रहे हैं, और कई बार हम इन्हें देखते हैं कि बड़ी टू द पॉइंट बात करते हैं। मुझे मनप्रीत का सीजन 7 का एक इंटरव्यू याद है, क्योंकि हमने अपने मैच से पहले जो प्री शो आता है उसमें वो एक बाइट यूज की थी मनप्रीत सिंह की। अब उनकी टीम सीजन 7 में ज्यादा अच्छा नहीं खेल रही थी, तो किसी पत्रकार ने पूछ लिया, मनप्रीत जी आपका जो डिफेंस है बड़ा अग्रेसिव खेल रहा है, क्या आपको लगता है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है? मनप्रीत ने कहा, भाई साहब हम ऐसे ही खेलेंगे, अग्रेसिव खेलेंगे, पहले भी अग्रेसिव खेलते थे, आगे भी अग्रेसिव खेलेंगे, हम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करेंगे, चाहे जीते चाहे हारें। लेकिन उस मैच में मनप्रीत ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी, मीडिया को नहीं बताया। लेकिन सबसे अच्छी बात उनकी उस रिस्पॉन्स में ये थी कि मनप्रीत ने किसी तरह से उस जर्नलिस्ट पे क्वेश्चन नहीं उठाए। ये नहीं कहा कि बेटा तूने कितनी कबड्डी खेली है, तू मुझसे ऐसे कैसे सवाल कर सकता है, मैं कबड्डी का उस्ताद हूं, मैं प्लेयर हूं, मैं कोच हूं। मनप्रीत ने किसी तरह से उसकी योग्यता पे सवाल नहीं उठाए। He did not question that journalist। उन्होंने कोई अपशब्द यूज नहीं किए, कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। He was speaking his own mind। वो पंजाब से हैं, पंजाबी में कहावत है, इक्की दुक्की रैन नहीं देनी, मोचते मक्खी बैन नहीं देनी, यानी जो मर्जी हो जाए मैं अपनी बात को जमीन पे नहीं लगने दूंगा।
तो मनप्रीत ने अपनी बात को जमीन पे नहीं लगने दिया, किया वही जो उनको करना था, लेकिन मीडिया को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। टीवी इंटरव्यूज, भाई आपको न्यूज चैनल अप्रोच करते हैं, चाहे आप क्लब लेवल कोच हैं या स्टेट लेवल कोच हैं या आप पीकेएल के कोच हैं, नेशनल कोच हैं, स्टार स्पोर्ट्स पर मैच से पहले आपके इंटरव्यू हम लोग लगातार लेते हैं, न्यूज चैनल्स आएंगे, न्यूज़पेपर्स आपके पास आएंगे, ऑनलाइन पोर्टल, हमारे राजू भावसार एक बड़ा अच्छा पोर्टल चलाते हैं और कई कबड्डी के फैंस हैं जिन्होंने नए नए पोर्टल शुरू कर दिए हैं। फिर आप टीवी चैनल्स के साथ मीटिंग करेंगे, जो कबड्डी के पार्टनर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, AKFI है, IKF है, उनसे आपकी मीटिंग होगी। प्रो कबड्डी की मीटिंग अनुपम सर आपकी लेंगे, स्टार स्पोर्ट्स की ब्रॉडकास्ट के एंगल से आपकी मीटिंग होगी, वहां आपको बोलना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन का तरीका आपको उसके लिए आना चाहिए। And last but not the least, language. Charu Sharma Sahab spoke in detail about the language. I will also just add to what Mr. Sharma said a few days back. Language एक आपका हथियार हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए राव साहब पंजाब की टीम को कोच कर रहे हैं तो उनको हिंदी आती है, पंजाब के लोग हिंदी समझ लेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर सोमप्रूच फोंचू साहब जो थाईलैंड से हैं, वो अगर हरियाणा स्टीलर्स के कोच बनते हैं, फोंचू साहब को हरियाणवी नहीं आती और हरियाणा के प्लेयर्स को थाई भाषा नहीं आती, तो कौन सी एक कॉमन भाषा है जो हम डेवलप कर सकते हैं? वो है इंग्लिश। चारू शर्मा साहब ने भी इसकी बात की थी। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम इंग्लिश के प्रकांड पंडित बन जाएं। जितनी अच्छी इंग्लिश अनुपम सर या राव साहब या चारू शर्मा साहब बोलते हैं, उतनी ही अच्छी इंग्लिश हमें आए, ये कोई जरूरी नहीं है। इतनी भाषा आनी चाहिए कोचिस को भी, खिलाड़ियों को भी, कि आपस में संवाद हो सके, क्योंकि उसी से खेल आगे बढ़ेगा। गुलाम रजा साहब अगर 2 सीजन से पीकेएल में कोच कर रहे हैं तो उनको बेसिक संवाद करने लायक इंग्लिश आती है। If coaches from Malaysia want to come in India and coach the PKL teams, then the coaches as well as the players, they must have that basic idea of communication through one common language. We have seen RS Kokar Sahab coaching the Kenyan team. Srinivas Reddy coached the Australian team. Jagmohan Sahab was with the England team, if I'm not mistaken. Rao Sahab has coached almost every team in the world through language, through English. So let's learn this new skill, which is going to be an asset for all of us. Then webinars. आजकल इतने वेबिनार हो रहे हैं, कबड्डी का वेबिनार, स्कूल का वेबिनार, बच्चों का वेबिनार. It has become a new revolution in digital media and communication now. Now this is a very unique address. मैं खुद पहली बार पर्सनली वेबिनार एड्रेस कर रहा हूँ। राघव साहब कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे थे मेरी इससे पहले कि 15 साल से कमेंट्री कर रहा हूँ, 12-15 खेलों में मैंने कई हजार मैचेस की कमेंट्री की है, पर ये वेबिनार में मेरा पहला एड्रेस है आपसे। और इस सेशन से शुरू होने से पहले मेरे हाथ भी कांप रहे थे, मेरे पैर भी लड़खड़ा रहे थे, मेरी हार्ट बीट भी थोड़ी बढ़ गई थी। टीवी में कमेंट्री की वो एक अलग स्किल है, वेबिनार में अपने लैपटॉप के सामने बैठ के आप दिग्गज कोचेस को संबोधित करना, ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है, आप सब कोचेस के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। तो ये बड़ा एक यूनिक तरीका है कम्युनिकेट करने का, और हमें आना चाहिए। अनुपम सर ने बड़ी विस्तार से बताया कि पोस्ट कोविड एरा में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कोरोना जल्दी खत्म हो, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के वेबिनार हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेंगे। मास्क, हैंड सैनिटाइजर और वेबिनार, ये 3 चीजें हैं जो अब जिंदगी भर हमारे पास रहने वाली हैं, तो इसकी आदत डाल लीजिए। जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं, प्लीज बी वेरी क्लियर इन व्हाट वी वांट टू कम्युनिकेट, क्योंकि आप लोग कबड्डी के भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, और कुछ तो द्रोणाचार्य अवॉर्डी भी हैं जो वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं। आपके पास कबड्डी का अथाह भंडार है, यू आर द ओशंस ऑफ द नॉलेज। तो जब आपको नॉलेज पास करें, ट्राई टू बी वेरी क्लियर, इस तरह से एड्रेस कीजिए कि जो सबसे यंग कोच है, सबसे इनएक्सपीरियंस्ड कोच है, उसको भी आपकी बात क्रिस्टल क्लियर समझ आए। नंबर 3, लैंग्वेज इज एन एसेट एज वेल एज इश्यू, जिसकी हम डिटेल में बात कर चुके हैं। कुछ लोग हैं मेरे जैसे जो हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जो पीपल ज्वाइनिंग अस फ्रॉम मलेशिया, थाईलैंड, कोरिया, कीनिया, ऑब्वियसली दे विल बी प्रेफरिंग टू talk or listen in English. So language can be an asset, language can be an issue, और हम मिलकर ही इससे पार जा पाएंगे। Together we will cross this hurdle also. Now communication should be very simple and easy to understand, क्योंकि हमारे पास यहाँ बहुत साधन नहीं है। अगर मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ तो मेरे पास सिर्फ ये स्लाइड्स हैं,
ज्यादा वीडियोस की ऑप्शन नहीं है। राव साहब अगर यंग प्लेयर्स को कोई स्किल सिखाना चाहते हैं तो बड़ा एक लिमिटेड उनको एरिया मिलेगा पीछे जाके फुटवर्क करने का। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हमारा है वो सिंपल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि हर एक कोच, हर एक शख्स उसे समझ ले। ये एक ऐसा इशू है जो मेरे दिल के बड़ा करीब है। और आई रिमेम्बर पीकेएल सीजन 1 में राव साहब से हम सबकी बात हो रही थी और हमने दरख्वास्त की थी राव साहब से कि कुछ वोकैबुलरी की टर्म्स ऐसी हैं, कबड्डी के कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्रो कबड्डी में पहली बार यूज हुए हैं, वो ज्यादा साइंटिफिक हैं, तो क्यों ना हम सभी मिलकर उसको अडॉप्ट कर लें। राव साहब ने, एकेएफआई ने, आईकेएफ ने उन तमाम चीजों को अपनाया है। अब क्रिकेट में बॉलर इज अ बॉलर इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। LBW इज LBW, उसे बिहार के लोग भी LBW कहेंगे, उसे बर्मिंगम के लोग भी LBW कहेंगे, उसे एडिलेड के लोग भी LBW कहेंगे। तो उसी तरह से जो कबड्डी की टर्मिनोलॉजी है वो भी कोशिश करें कि एक हो। जब डिफेंडर किसी रेडर को पकड़ता है उसे हम टैकल कहना शुरू करें, कैच धीरे धीरे छोड़ें, टैकल की तरफ आए। एंटी रेडर या कैचर को हम लोग डिफेंडर कह रहे हैं। 7 सीजन से आईकेएफ ने भी इस वोकैबुलरी को यूज किया है, इसको हम यूज करें। तीसरा है ऑल आउट। हम अपनी भाषा में जब सातों के सातों प्लेयर आउट हो जाते हैं, when all the players are out of the match, we call it all out. Traditionally it was called लोना, या महाराष्ट्र के लोग कहते थे, प्लेयर कहते थे हमारे ऊपर लोन गिर गया है। इसको ऑल आउट की तरह हम बोलना शुरू करें। जो पहली लाइन है कोर्ट के अंदर उसको कई जगह अटैक लाइन कहा जाता है, कई जगह ब्लॉक लाइन कहा जाता है। आइए कोशिश करें कि हम इसको बॉक लाइन कहना शुरू करें। फिर एक है चलती कबड्डी, जिसे हम कहते हैं परस्यूट। जब एक रेडर अपनी रेड खत्म करके वापस जाता है तो डिफेंडर उसका पीछा करता है, उसको टेक्निकली परस्यूट कहा जाता है। तो ये सारी बातें आपसे अनुरोध करने का मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि अगर एक ही टर्म के लिए, एक ही सिचुएशन के लिए अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग कंट्रीज में लोग अलग अलग वर्ड यूज करेंगे तो हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाएंगे। स्पेशली जो आप कोचेस ग्रास रूट लेवल से हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या स्कूल लेवल के कोच हैं, आपका रोल इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। जितनी जल्दी आप ये प्रो कबड्डी के या आईकेएफ के या एकेएफआई के टर्म्स अपने प्लेयर्स को सिखाएंगे, वो प्लेयर्स जब परिपक्व होकर इंटरनेशनल लेवल पर या प्रो कबड्डी लेवल पर आएंगे तो ये टर्म्स वो यूज करना शुरू करेंगे। इससे कबड्डी ऐसा लगेगा कि एक अम्ब्रेला के अंदर है, एक छत के नीचे हम सब खड़े हैं। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हाइल कम्युनिकेटिंग। स्पाइडरमैन मूवी आप सबने देखी है, मैंने भी देखी है। उसमें स्पाइडरमैन साहब के जो चाचा थे उनका एक डायलॉग था, which is my favorite dialogue, with great power comes the great responsibility. जितनी ज्यादा आपके पास शक्ति है, जितना बड़ा आपके पास ओहदा है, उतनी ज्यादा जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आती है। In Pro Kabaddi League, all the coaches wear microphones, so they are audible on TV. खोखर साहब दिखाई दे रहे हैं, उदय कुमार साहब दिखाई दे रहे हैं आपको, और इनके अलावा जितने भी कोचेस हैं वीवो प्रो कबड्डी में, सबको एक माइक पहनाया जाता है। जब वो अपनी टीम से बात करते हैं, आप लोगों ने नोट किया होगा, हम कमेंटेटर चुप हो जाते हैं ताकि पता चले कोच अपनी टीम से क्या बात कर रहा है। अब आपकी आवाज पूरी दुनिया में जा रही है, 100 से ज्यादा टेरिटरीज में आपको सुना जा रहा है। तो वहां आपको जो भी बात करनी है, जिम्मेदारी से बात करनी है। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि प्रो कबड्डी के हमारे सीनियर जितने कोचेस हैं सभी बड़ी जिम्मेदारी से बात करते हैं। उन्हीं से आप सब यंग कोचेस को सीखना है कि जब आपको सारी दुनिया सुने, we must be more and more responsible. Do not lose control even in the most tense situation. अब कबड्डी एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, जोश इस खेल का हिस्सा है। जोश में कई बार खिलाड़ी होश खो देते हैं, कई बार कोचेस होश खो देते हैं, कई बार कमेंटेटर होश खो देते हैं, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है। अपनी भाषा की मर्यादा को बनाए रखना है। Scolding is still fine, but use of unparliamentary words is not. अगर आप प्लेयर से गुस्सा हैं तो उसे डांट दीजिए। मैंने कई बार देखा है, राम मेहर सिंह साहब प्रदीप को डांट दिया करते हैं, रणधीर सिंह शेरावत, पवन शेरावत को खूब डांटा करते थे। चलेगा, प्लेयर को डांट दीजिए, कोई बात नहीं। आप जो सीनियर कोच हैं राव साहब जैसे, वो जानते होंगे, कुछ प्लेयर शाबाशी से चलते हैं, कुछ प्लेयर डांट से चलते हैं। डांटना ठीक है, लेकिन गलत वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। वो शब्द जो असंसदीय हो, जो टीवी पे अच्छा ना लगे, उसका इस्तेमाल करने से गुरेज करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद सपोर्ट स्टाफ एंड ऑफिशियल्स। अब तकरीबन हर कोच के साथ एक असिस्टेंट कोच रहते हैं,
यूपी में जसवीर सिंह के साथ अर्जुन सिंह है, यू मुंबा में ई भास्करन के साथ रवि शेट्टी थे, अनूप के साथ गुरप्रीत सिंह थे। हर टीम में असिस्टेंट कोच है, सपोर्ट स्टाफ है, उनके साथ आप कैसे बात करेंगे ड्यूरिंग द मैच, मैच के बाद भी, वो आपके इंटर कोचेज स्किल को डेवलप करता है। ऑफिशियल्स जो हमारे 8-10 मैच ऑफिशियल हैं, असिस्टेंट कोच हैं, एक तो इनफैक्ट असिस्टेंट स्कोरर आपके डगआउट पे बैठे रहते हैं, आपने उनसे कैसे बात करनी है सब्स्टिट्यूट लेने के लिए, टाइम आउट लेने के लिए, मेन रेफरीज हैं या आपके अंपायर 1 अंपायर 2 हैं, उनसे कैसे आप मर्यादा में रह के शालीनता से अपनी बात रखें, वो आपके कम्युनिकेशन स्किल में ऐड होता है। सोशल मीडिया ये भी कम्युनिकेट करने का तरीका है। अब राहुल साहब बता रहे थे, राहुल चौधरी के, अजय ठाकुर के लाखों, दसियों लाखों, मिलियंस फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। वहां जो आप लिखते हैं, कोचेस हमारे बड़े कई फेमस हैं सोशल मीडिया पे, आप इंटरव्यूज भी देते हैं, आप लाइव सेशन भी करते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या फेसबुक पे, वो भी आप दुनिया से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो वहां जो भी लिखिए, जो भी बोलिए, याद रखिए आप सिर्फ एक अनूप नहीं है, आप सिर्फ एक राकेश नहीं है, आप सिर्फ भास्करन नहीं है, आप सिर्फ रणधीर सिंह नहीं है, आप अपनी टीम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप इस देश में कबड्डी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो सोशल मीडिया पर आप जो भी लिखेंगे, जो भी बोलेंगे, उससे आपकी टीम की और आपके खेल की इमेज बनती है। तो जैसी इमेज हम बनाना चाहते हैं वैसा ही लिखें, वैसा ही बोलें, सकारात्मक लिखें, पॉजिटिव बोलें। So let's be very responsible while we communicate on the social media. Summary, जो कुछ मैंने अपने अनुभव से आपसे बांटने की कोशिश की है, उसका सार क्या है? Communication is vital, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के तो गाड़ी आगे चल ही नहीं सकती. You have to be very good while communicating with your players, with your franchisee owners, with your broadcasters, with the ministers, with the prime minister, etc., with the media as well. Be clear with your instructions. अगर एक कोच को लगता है कि उसका प्लेयर बोनस नहीं कर रहा तो क्लियर कट बताइए। अगर आपको लगता है कि प्लेयर एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं देना है, उन्हें मोटिवेट करना है तो मोटिवेट कीजिए, डीमोटिवेट मत कीजिए। बी पॉजिटिव ड्यूरिंग द गेम। ये सिर्फ एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। कुछ कोच प्लेयर को डांटते हैं, फाइन, कुछ प्लेयर डांट से समझते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर हम लोग कमेंट्री कर रहे हैं, अनुपम सर हमारे बॉस हैं, इनको हमारी कमेंट्री अच्छी नहीं लगी और ड्यूरिंग द मैच इन्होंने हमें डांट किया, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि यार डांट पड़ गई, मैं स्टार स्पोर्ट्स का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मेरा सौभाग्य है, तो सर डांटना है तो मैच के बाद डांटिए। वैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अनुपम सर ने ना मैच के पहले कभी हमें डांटा है, ना मैच के दौरान कभी हमें डांटा है, ना मैच के बाद हमें कभी डांटा है। जो भी इनकी ऑब्जर्वेशन थी, इनके सुझाव थे, सारे कोचेस जानते हैं कि अनुपम सर जब भी बात करते हैं स्माइल से बात करते हैं, तो इनके जो भी सुझाव आते हैं वो स्माइल से आते हैं। उसी तरह से अगर आप कोचेस भी अपने प्लेयर से मुस्कुराकर, पॉजिटिव होकर, शाबाशी देके उसे कुछ सिखाएंगे तो वो जल्दी सीखेगा। पॉजिटिविटी से बड़ा एसेट हो ही नहीं सकता है। You are the brand ambassadors of your team, so be responsible. We just talked about that. आप जो भी बोलते हैं टीवी पर, जो भी लिखते हैं सोशल मीडिया पर, उससे आपकी टीम की इमेज बनती है। उसे बनाए रखिए, उसे बढ़ाए रखिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रैक्टिस अ कॉमन टर्मिनोलॉजी। लेट्स यूज द वर्ड्स लाइक डिफेंडर, ऑल आउट, टैकल, एटसेट्रा, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हरियाणा के प्लेयर तो कैचर बोल रहे हैं और महाराष्ट्र के प्लेयर तो डिफेंडर बोल रहे हैं, कमेंटेटर कुछ और बोल रहा है। एक ही टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि ऐसा लगे कि कबड्डी के लोग एक ही छत के नीचे बैठे हुए हैं। लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोचेस को कम्युनिकेट काफी करना है टीवी में, मीडिया में, सोशल मीडिया पर, प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप एज अ प्लेयर प्रैक्टिस करते थे, जैसे आप अपने प्लेयर्स को एज अ कोच प्रैक्टिस करवाते हैं। मैंने सुना है कि कई जो कोचेस हैं, अगर सपोज राम मेहर सिंह साहब ने प्रदीप को बोनस सिखाना था तो 6-6 घंटे, 3-3 घंटे वो बोनस करवाया करते थे। जिस तरह से आप अपने प्लेयर को एक ही स्किल की प्रैक्टिस बार बार करवाते हैं, उसी तरह से बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। बड़ा सारा शीशा, उसके सामने खड़े हो जाइए, खुद को सामने देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। कैमरा रिकॉर्ड कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी सबके पास है, सेल्फी कैमरा ऑन कीजिए, सिचुएशंस इमेजिन कीजिए। मान लीजिए आप बीसी रमेश हैं और आपने अभी वीवो प्रो कबड्डी जीती है, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, क्या जवाब देना है आपने, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए आपकी टीम फाइनल हारी है, क्या आपने जवाब देना है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैं कोई सहायता कर सकूं, आई विल बी ऑनर्ड इफ आई एम ऑफ एनी सर्विस
in this art of communication. Think काफी time मैंने आपका ले लिया. It's been around 1 hour and 30-40 minutes. We have been consuming your time. और आपकी हालत भी इन वानर राज की तरह हो गई होगी. You must all be very, very tired. So thank you very much for listening very patiently to all of us. With this, we conclude this session. Back to you, Raghav sir. गोस्वामी सर, with your permission, और सर कुछ टिप्स देना चाहेंगे इससे पहले हम कंक्लूड करें? अनुपम सर। सर ये तो सुनील ने कोई चीज छोड़ी भी नहीं है, मतलब कि गागर में सागर कैसे भरते हैं सुनील ने दिखा दिया है। और इसमें कई चीजें थी जो मतलब कि स्पेशली द लास्ट पॉइंट ही सेड, कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस के साथ, और जैसे हमने कहा था कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसके साथ सिद्धहस्ता फेमिलियरिटी होनी चाहिए, बट बिगिनिंग हमेशा प्रैक्टिस से ही होती है, वो तो कोचिंग का सिद्धांत ही है। और जो उन्होंने जो लास्ट पॉइंट कहा था, मेरे ख्याल में दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, और वो शायद कभी उस पर फिर से देखेंगे, कभी हमें फिर से एक सेशन उसी पे करना चाहिए। इफ यू हैव टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट, बट स्टार्ट वही करना पड़ेगा। आप कोई डिवाइस या कोई शीशे को उसके सामने प्रिटेंड करना पड़ेगा कि आप खुद से बात कर रहे हैं कम से कम, और उस कंफर्ट लेवल के साथ हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो शैडो प्ले है, वो मिरर प्ले और शैडो प्ले दोनों कोचिंग, हर स्पोर्ट की कोचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू अनुपम सर। जैसा कि आपने बताया, आप प्री कोविड और पोस्ट कोविड बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं हर स्थिति में। इसमें स्पोर्ट्स भी इससे अछूता नहीं है, एंड sports coaching and other aspect of coaching will be affected after post covid, और उसमें कम्युनिकेशन का रोल बहुत ही important रहेगा। as a coach has to communicate with all the stakeholders, whether it is a athlete, support staff, and the parents, whether administrators, whether coaching staff, and the role of coach as a effective communicator, it has become very valuable and important after COVID. सर और सुनील तनेजा सर ने जितना बिल्कुल सिंपल भाषा में, साफ शब्दों में अपना पूरा एक्सपीरियंस जो उनका है वो अभी आपसे शेयर किया। आपका, सुनील साहब का, अनुपम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सर कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, शॉर्ट टाइम अगर थोड़ी देर। श्योर सर, Taneja sir, if you can scroll the questions, or otherwise yes sir, Sanjeev Sharma can help. Sir, may I ask one question? Sure, please. One of the person from Bhiwani, Haryana, Mr. Sandeep, he is saying that गांव में कबड्डी का स्तर कैसे सुधारें, कौन से फेडरेशन से खेलें, क्योंकि आजकल कई फेडरेशन हैं वो जो सर्टिफिकेट वो बोलते ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, तो सर इसके बारे में आप बताएं। मुझे आपका बीच में ऑडियो कुछ डिस्टर्ब्ड सुनाई दे रहा था, लेकिन जो मुझे सवाल समझ आया संदीप जी, भिवानी से किसी भाई ने पूछा है कि गांवों में खेलों का, कबड्डी का स्तर कैसे सुधारें, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्वेश्चन हरियाणा से आया है। मुझे ऐसा लगता है हमें शहरों में खेलों का स्तर सुधारना पड़ेगा। हरियाणा के गांवों में तो कबड्डी रची बसी है। मुझे याद है जब एशियन गेम्स अभी 2018 की मैं बात कर रहा था, जब एक टीवी चैनल पे बैठ के हमने 1 घंटा डिस्कशन किया इंडियन टीम क्यों हारी वगैरह, उसमें एंकर ने मुझसे पूछा था, सर अब तो कबड्डी इंडिया में खत्म हो गई, अब तो ईरान में कबड्डी चली गई है, क्या ऐसा हो गया भारत में कबड्डी? तो मैंने रिमेम्बर उनको एक मिसाल दी थी कि महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण जो थे वो पांडवों के दूत बन के गए थे कौरवों के पास। तो उन्होंने एक शांति का प्रस्ताव रखा था और कहा था मुझे 5 गांव दे दो युधिष्ठिर, उनको स्वीकार कर लेंगे और आपको युद्ध करने की नौबत नहीं आएगी। उन्होंने 5 गांव नहीं दिए। उसी तरह से मैं आपको आज कहता हूं मुझे 5 गांव दे दो, रिंढाना, कथोरा, बुढ़श्याम, भैंसवाल और एक बवाना। इन 5 गांवों से इंडिया की टीम बनेगी, वो ईरान को हरा सकती है। ईरान की टीम ने अच्छा काम किया है, कुडोस टू देम, लेकिन भारत में कबड्डी खत्म नहीं हुई है। कबड्डी भारत के गांवों में है। 2-3 गांवों की टीम भी ईरान को हरा सकती थी। तो मेरे भाई
आप भिवानी से हैं, जहां से विजेंदर जैसे लेजेंड बॉक्सर आए हैं, वहां तो कबड्डी रचती बसती है। सवाल ये होना चाहिए कि हम मुंबई में, हम पुणे में, हम दिल्ली में, हम अहमदाबाद में, हम कोलकाता में कबड्डी को कैसे ऊपर उठाएंगे? गाँव में तो कबड्डी है भाई। और हरियाणा तो मतलब देशा में देश हरियाणा, कबड्डी के सारे गोल्ड मेडल लेके जाना, ये तो हम अक्सर बोलते हैं कमेंट्री में। आप तो कबड्डी के उस्ताद हो। Sir, one more question from Mr. Ashok Deshpande. जी, Is there any possibility to arrange any professional kabaddi league for school and all India inter-university level? As there are so many professional leagues are there in cricket, basketball, football, and boxing. What's your opinions? Shall I take that question? sir, yes, this is for you. Sir. See, Sandeep, thank you. I think what is very important, and I will request all of us should understand one thing, और हम सबको ये पहचानना चाहिए कि ये जो साई का वेबिनार है, इट्स बहुत सार्थक प्रयास है और इसे हमें बहुत सफल बनाना है। एक चीज तो ये है कि जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो जो पर्टिकुलर सेशन है उसके ऊपर होने चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज हो सकता है कि उसके बाद एक और संगोष्ठी साई के सुपरविजन में हम कर सकें, जो हम कबड्डी के भविष्य पे हम बात कर सकते हैं। मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि जो सवाल होने चाहिए वो जो पर्टिकुलर सेशन है उसको होना चाहिए। पर आपने सवाल पूछा है और मैं छोटा सा उत्तर दूंगा, मैं उससे ज्यादा नहीं दूंगा। हाँ, कहने को लीग तो हर चीज ही कर सकते हैं, लीग करने वाले चाहिए होते हैं और लीग्स ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि पीकेएल को देख के भी कई लीग्स करने की कोशिश की गई है, कुछ लोग जरा से सफल भी हुए हैं उसमें। मेन चीज मॉडर्न स्पोर्ट की होती है कि आपका मीडिया पार्टनर कौन है, वहां से शुरुआत होती है किसी भी इस तरह के प्रयास की। तो हमें मतलब कि अगर स्कूल पे या रीजनल लेवल पे करना होगा तो हमें स्कूल लेवल पे जो ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जो मीडिया पार्टनर्स बनने को तैयार हैं, फिर हम कर सकते हैं। लीग, स्पोर्ट्स लीग जो है, भारत का अनुभव स्पोर्ट्स लीग का अभी भी बहुत हाल ही का है। मतलब हमारी जो सबसे बड़ी लीग है क्रिकेट की, वो अभी उसे 10 साल हुए हैं। हम लोग तो बहुत ही छोटे हैं, हम लोग तो 2014 की, मतलब मैं अपनी बात करूँ तो हम 2014 से शुरुआत है हमारी। वी आर वेरी यंग एंड वी आर स्टिल ग्रोइंग, वी हैव टू लर्न सो मच। मतलब कि कुछ जो संस्थाएं जुड़ी हैं प्रो कबड्डी से, AKFI, स्टार लीग की जो 12 टीमें हैं, ऐसे पार्टनर, मतलब बहुत सशक्त पार्टनर हैं लीग। वी हैव बीन वेरी लकी देयर। वो सब जब आते हैं तो मतलब कि देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच हैव मेड इट पॉसिबल। AKFI हैज बीन अ ग्रेट पार्टनर फॉर कबड्डी, द कबड्डी लीग। पर लीग एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो कि बाहर की डेवलप्ड बहुत बड़ी इकोनॉमीज में से हम लोग इंडिया में लाए। सो वी कैन टॉक ऑफ लीग्स, बट सक्सेसफुल लीग करने के लिए इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट। बहुत प्रयास करना पड़ेगा और थोड़ा सा ऊपर वाले का भी हाथ जरूरी होगा। और इसके बाद मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सर कि जो क्वेश्चंस हों, राघव साहब आपकी अनुमति के साथ मेरी रिक्वेस्ट है, क्वेश्चंस शुड बी रेलेवेंट टू द सेशन प्लीज। Sir, it's noted, sir. But point is, attendees they should understand it. जी सर। Now I request Sanjeev to, if there are any other question related to today's topic, please. Sir, regarding this topic, yes, sir. Sir, जो अभी क्वेश्चन आपने लिया है जूनियर लीग का, सर आई एम नॉट अवेयर, जस्ट फॉर माय नॉलेज, सर, जस्ट कबड्डी लीग, आर दे नॉट रनिंग देयर जूनियर प्रोग्राम लाइक फुटबॉल एंड ऑल अदर? सो वी डू अ कबड्डी KBD जूनियर्स, उसका उल्लेख सुनील तिलेजा ने किया भी था। इट्स
इट्स अ यूनिक प्रोग्राम फॉर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। मतलब कि हम लोग कहते हैं कि कबड्डी इतने क्रिकेट के बाद है, देश का नंबर 2 स्पोर्ट है, और लोग कई लोग कहते हैं इस तरह के। आई टेंड टू सॉर्ट ऑफ बी कंजर्वेटिव देयर, क्योंकि हमारे स्पोर्ट को बहुत लंबा रास्ता भी तय करना है। वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे। बट वन थिंग इज केबीडी जूनियर्स इज द यूनिक प्रोग्राम। उस लेवल का प्रोग्राम स्कूल स्पोर्ट का आपको दुनिया भर में से मिसाल कोई कम मिलेगी, बिकॉज इट इज नॉट अ लीग सर, इट इज सो इट इज केबीडी जूनियर्स की जो यूनिक वो है कि हम बच्चों को उसी मैट पे ले जाते हैं जिसपे प्रो कबड्डी होती है, उसी कैमरा सेटअप पे ले जाते हैं जहाँ पे प्रो कबड्डी के लिए है, और वही कमेंटेटर, वही रेफरीज, राव साहब का टेक्निकल टीम उनका सुपरविजन करता है। इस तरह का प्रोग्राम बच्चों के लिए जो प्रो कबड्डी का इनिशिएटिव और है नहीं, जिससे कबड्डी को, जो सुनील बोल रहे थे, हमारा मकसद ये था कि ये दिखाना कि शहरी स्कूलों में शहरी बच्चे भी कबड्डी के प्रति रुझान रखते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो इट वाज मेंट टू शो दैट यंग चिल्ड्रन फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज विल आल्सो टेक टू अ स्पोर्ट लाइक कबड्डी। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कबड्डी की छवि ये थी कि ये गांव का खेल। People would say that villagers play kabaddi. We want to change the image of kabaddi. We want to say that every Indian plays kabaddi. तो हम लोगों ने ये KBD juniors का है, but and thank you so much for giving me this opportunity to talk about KBD juniors. But KBD juniors is not a league. Right. Sanjeev, is there any other question? Sir, may I draw attention to one question? It is directly to do with this session. Sir. ये श्रद्धा जी ने पूछा है, कैन वी फाइंड वोकैबुलरी फॉर ऑल डिफरेंट स्किल्स ऑफ कबड्डी विच कैन बी यूनिवर्सल? सुनील, आपने कहा था कॉमन वोकैबुलरी होनी चाहिए, आप बताइए ना। गुड क्वेश्चन। आई थिंक जितने भी लोग इसको अटेंड कर रहे हैं, दे आर कोचेज या कबड्डी से जुड़े हुए हैं, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि वो लोग पिछले 7 सीजन से प्रो कबड्डी देख भी रहे होंगे। तो अगर वो प्रो कबड्डी देख रहे हैं तो ये टर्मिनोलॉजी वैसे ही आपकी जुबान पे चढ़ जानी चाहिए। बट जहां तक मेरी नॉलेज है, प्रो कबड्डी की वेबसाइट पे और AKF की वेबसाइट पे वो सारी चीजें PDF के तौर पे अवेलेबल हैं, जहां सारे रूल्स एक्सप्लेन किए गए हैं, क्योंकि कई रूल बदले हैं। जैसे सुपर टैकल का रूल पहले प्रो कबड्डी में आया, उसके बाद इसको IKF ने अपना लिया। इसी तरह से हमने कई टर्म्स बदली। पहले रेडर 3-4 पॉइंट लेता था तो सिर्फ एक सक्सेसफुल रेड मानी जाती थी, अब 3 या 4 या 5 पॉइंट के रेड को सुपर रेड कहा जाता है। तो ये सारी नई टर्म्स वो तमाम वहां अवेलेबल हैं श्रद्धा जी, चाहे वो प्रो कबड्डी की वेबसाइट हो, चाहे वो AKFI की वेबसाइट हो। बाकी आप कमेंट्री सुनते रहिए, ये सारी चीजें आपको वैसे ही स्वतः ही पता चल जाएंगी। I may add one thing to that, Sunil. जो और यहाँ पे जो जितने कबड्डी परिवार के लोग हैं, राघव साहब हैं, राव साहब हैं, हम लोगों ने कबड्डी की वोकैबुलरी पे जब हम मतलब टीवी कमेंट्री के पर्सपेक्टिव से हमने बहुत प्रयास किए कि एक कॉमन वोकैबुलरी निकले। और उसमें सुनील कभी हम लोग मतलब कि जब मैं ब्रॉडकास्ट देखता था तो कभी सहमत होते थे, मुझे आज पता चला था कभी असहमत भी रहते होंगे। तो खैर इन्होंने कभी मुझे पता नहीं चलने दिया, इसलिए मैं मुस्कुराता रहा। बट कॉमन वोकैबुलरी कहाँ जहां निकलेगी सर, वो इंग्लिश में निकलेगी। जो चारों का पॉइंट है और जो सुनील का पॉइंट है, जो कॉमन वोकैबुलरी है, अगर एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमें कबड्डी ओलंपिक्स तक ले जाना है तो कम से कम 50-60 देशों में मेन विमेन दोनों खेल रहे हैं। कॉन्टिनेंटल गेम्स होंगे, नेशनल गेम्स होंगे, कई तरह के कंपटीशन होंगे। उसमें उस लेवल के स्पोर्ट का कम्युनिकेशन बहुत बढ़ेगा, पर कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड होना चाहिए। और वो जो एक ही भाषा जो उसमें इस समय जिसमें संभावना लगती है वो अंग्रेजी की है, क्योंकि अगर इतने सारे ओलंपिक ज्योग्राफीज के लोग कबड्डी की बात करेंगे वो एक ही भाषा का यूज करें, वो अंग्रेजी हो सकती है। सर इसमें एक कॉमन वोकैबुलरी जस्ट नाउ मेरे माइंड में आई है। डुबकी इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, इज इट? यस। Is it also like called Dubki in other countries?
नो सर, डुबकी उसका सुनील, उसका कोई डाइव है, कुछ एक वर्ड था ना जो एक हम लोगों ने पहले मैनुअल में बनाया था। जी सर। बट सर हम ऐसा कर रहे थे कि जब हम इस वर्ड का इतिहास ये है कि 2015 या 16 में हम कबड्डी की टर्मिनोलॉजी देख रहे थे, और जैसे हम एग्जाम्पल और स्पोर्ट से ले रहे थे, खासकर क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट है। तो जैसे क्रिकेट में डक होता है, और हम उस तरह के कुछ शब्द देख रहे थे जो यूज करें स्ट्रेट अवे, ये ना लगे कि मतलब कि उसका स्ट्रेट अवे उसका संबोधन स्पष्ट हो जाए क्या कह रहे हैं। और हम लोगों ने बहुत क्षेत्रों की भाषा में, मैं तो ये अभी भी नटराज साहब, राव साहब और अन्य कोचगण से बात करता रहता हूँ कि कबड्डी के टर्म्स क्या है। फैक्ट इज कि इंडिया में भी कबड्डी की यूनिफाइड वोकैबुलरी अभी नहीं है, और जो है वो साय के जो मैनुअल्स हैं, जो राव साहब ने जिनकी ऑथरशिप में और नटराज साहब ने देखे, वहां से कुछ टर्म्स है। दे हैव नॉट, मतलब बट दे आर मेंट फॉर इंस्ट्रक्टिंग कोचेस, दे आर नॉट कम्युनिकेशन। उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन, पॉपुलर कम्युनिकेशन का नहीं है। So that is something we will have to work upon as we go along, as kabaddi grows big. And there is a small start has been made at Pro Kabaddi, but these are very early days. जो सारा हमारा सक्सेस है, अचीवमेंट है, ये अभी बहुत ही सतही है, हमें बहुत आगे जाना है। So there's a question regarding communication from Pratibhan M. He writes, communication during match between coach and player is always different, because in any match, what we plan before the match, but players do not perform accordingly. Why does that happen? So we were all talking about this before the match communication, during the match communication. So Pratibhan ji, you as a coach decide something before the match. We as a commentator prepare something, keeping in mind, okay, there's Pradeep Narwal, he will do Dubki. But in the live match, that thing may not happen. So coach planned for one thing and the situation changes. So this now depends upon you coaches, how you communicate with the player with the changing situation in the match, because situation will always change. The best thing about kabaddi, the beauty about kabaddi is that this is unpredictable. 2 days back, RS Kokar Saab was showing that video reel of the highlights of some superb raids. I remember my commentary. Nabi Baksh was raiding. 2 defenders of Dabang Delhi were there, Ravinder Pahal and one more guy. So Ravinder Pahal dives, does the ankle hold of Nabi Baksh, and I said, oh, it's a super tackle. But Nabi Baksh crossed the midline after that. So I immediately changed my commentary narrative. Super tackle nahi hua, all out ho gaya, because the situation changes so quickly. So you as a coach need to change your way of communication so quickly. Like we mentioned, if you are E. Bhaskaran of Tamil Talaibaz, if you have Rahul Chaudhary in your team, you will not teach him how to do a running hand touch. He knows that. By chance, if Rahul is not performing well, or a Manjeet Chillar is not performing well, they know how to play. You will just encourage them. If you have a youngster, like say a Pawan Sehrawat, who is only 2 or 3 seasons old, he is faltering in his footwork, you may teach him. So that is way of communication with different sets of players, with different sets of experiences. And the situation in a match will keep on changing. You plan for one thing, you face another thing. So according to that second thing that happens on the match, you change your communication. That will make you Pratibhan to Prasad Rao. That's a journey you have to, do through your communication. Raghav sir, can I draw attention to another question, please? Please, sir, please. 127 में डॉक्टर दिनेश कुमार चौधरी ने पूछा है, what are common barriers of communication or to communication? I think it's a general, overall general question. Sunil, will you try to answer this? Sorry, sir. What's the question? I lost the track. डॉक्टर दिनेश कुमार का सवाल है 1:27 पे, व्हाट आर द कॉमन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, एंड आई थिंक वी हैव टू आंसर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कबड्डी एंड कोचेस. Yes, sir, absolutely. So common barriers, very, very important question, Dr. Saab. Thank you for asking this. The first barrier in communication is language. Suppose a coach from Malaysia is coaching a club in Bangladesh.
So I assume most of the Bangladeshi players will speak Bangla. थोड़ी बहुत हिंदी बोलेंगे because they watch Hindi movies, etc. Maybe they are fluent with English. Coach from Malaysia, if it's Mr. Durasamy, obviously he'll speak very fluent Tamil. He'll be good with English. So first barrier is always the language. अगर आपने geography को तोड़ना है, if you want to just if you are not satisfied by just becoming a club level or a state level coach, if you want to become bigger national level coach or a PL level coach or an international level coach, the first skill that you must adopt, you must learn is the language. That barrier is broken. Ask Mr. Prasad Rao. I think he has coached in 40, 50 odd countries, and I'm sure he does not know all the languages. But one language that all the players will understand in a basic manner, and Rao Saab speaks very fluently, is English. So that barrier has to be broken. Second barrier is the techniques. Of course, Kabaddi is a sport of techniques. In different areas, different techniques are used. Like we say in football, Italian football is always defensive. German football is always aggressive. Indian style of hockey is entirely different from Holland style of hockey. So what happens? We import coaches from Netherlands to teach us that very style of hockey. So similarly, even in Kabaddi, the styles vary. महाराष्ट्र में जो स्टाइल यूज किया जाता है, वो स्टाइल हरियाणा में नहीं यूज किया जाता होगा. जो तमिलनाडु के कोच टेक्निक्स यूज करते हैं, जो डिफेंस की फॉर्मेशन यूज करते हैं, वो कहीं और नहीं यूज किया जाता होगा. तो सेकंड बैरियर इज योर स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन. आप उसको कैसे दूर करेंगे? इसी तरह के वेबिनार से दूर करेंगे. आप राव साहब का सेशन सुनेंगे, आप मैडम डॉक्टर सुनील दवास का सेशन सुनेंगे, आप पोकर साहब का सुनेंगे, आप राजू भाव सार का सुनेंगे, आप चारू शर्मा का सुनेंगे, अश्विन कुमार जी का सुनेंगे. इन सबसे सीखेंगे ताकि नई नई चीजें सीखने को मिले. जयवीर शर्मा साहब का सेशन उस दिन मैं सुन रहा था. उन्होंने ज्ञान का पूरा सागर बहा दिया था और हमें समझ नहीं आ रहा था कहाँ से मोती इकट्ठे करें. तो दूसरा बैरियर है नई नई चीजों को यूज ना करने की हमारी प्रवृत्ति, कुछ नया नहीं सीखने की प्रवृत्ति. इस प्रवृत्ति को हटाइए. ऑलवेज बी अ हम्बल लर्नर. लाइक प्रसाद राव साहब, whenever I talk to him, he says, Sunil sir, I am only a humble student of the game. He is one of the biggest and most respected coaches in India, and he still feels that he is a student of the game. That should be our strategy also. That should be our thinking also. Always learn new things and all the barriers will be broken, sir. सुनील, अगर इसमें मैं दो शब्द ऐड कर सकूं, और वो आपके प्रेजेंटेशन में सम्मिलित था, निहित भी था. It was there in a presentation, but I think we have to realize कि कल अभी yesteryear's coach, कल के कोच की जो कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट थी वो अलग थी. आज के कोच की, मतलब ये कोविड के पहले की कोच की कम्युनिकेशन रिक्वायर्स अलग थी. आफ्टर कोविड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन फॉर कोचेस आर गोइंग टू बी डिफरेंट. जो सबसे बड़ी बात जो हमें चेंज करनी, yesteryear के कोचेस would talk primarily to players and to their teams. उससे ज्यादा अपने जो स्पोर्ट्स ऑफिसर थे अपने डिपार्टमेंट वगैरह में ज्यादा से थोड़ा सा उनसे बातचीत कर लेनी थी. वो दूसरी तरह की बातचीत. प्रो कबड्डी में क्या है कि कोचेस का यूनिवर्स अचानक बढ़ गया है. प्राइवेट टीम्स हैं, टीम ओनर्स हैं, टीम मैनेजमेंट्स हैं. टीम के अंदर कई और लोग हो जाते हैं कि जो पहली बार इतने रेगुलरली आ रहे हैं. ट्रेनर्स हैं, फिजियो है, मेडिकल ऑफिसर है. उसके बाद लीग भी है, जो कभी कभी लीग अपने अनुशासन के लिए राव साहब एक लेटर भिजवा देते कि आप डिसिप्लिन कमेटी में आ जाओ. वो भी है. तो वो दुनिया तो और चेंज हो ही रही थी. उसके साथ साथ जो बड़े, जब हम बड़े स्पोर्ट बनेंगे तो और स्टेक होल्डर है. मीडिया है. मीडिया से बात करना कोचेस का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और खासकर ऐसे दायरे में कि अभी भी कोचेस आर सो इम्पोर्टेंट टू कबड्डी टीम्स. स्पोर्ट में अभी इतने इंपॉर्टेंट कि ब्रांड एम्बेसडर, जैसे सुनील ने कहा कि दे हैव टू अंडरस्टैंड देयर मेन कम्युनिकेटर. सबसे बड़े जो पूरी कबड्डी की दुनिया, कबड्डी से जरा से बाहरी दुनिया को जो संबोधन करते हैं, अभी भी टीम्स प्रेफर थ्रू देयर कोचेस. दैट इज द वी हैव टू एक्सेप्ट. कोचेस को मानना पड़ेगा कि इन सब लोगों के साथ वार्तालाप, कॉन्वर्सेशंस, कम्युनिकेशन, संदेश, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. और
जो पूरा कम्युनिकेशन का दायरा इतना था, अब ऐसा हो गया, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। Raghav Saab, it's a one very good suggestion from Mr. Ravi Shetty. I think he is the same Ravi Shetty who was the coach of U Mumbai and now the coach of Yuva Paltan. He has a suggestion, come request to Mr. Anupam Goswami that before every PKL session there should be this communication session for all the coaches. मैं तो सारे कोचेस, मैं तो हुई सारे कोचेस से सीखने के लिए, और जो कोचेस मुझे कहेंगे मैं हमेशा करके दिखाता हूँ। एंड राव साहब कैन वाउच फॉर इट कि जब जब कोचेस ने संगठित होकर मुझसे कुछ कहा तो मैंने जरूर करके दिखाया। सर, I will, it is very important, we will take it up. It should happen at every this thing, it should happen at every competition, even at AK5 competition, because media is watching nationals more, media wants to see Federation Cup more. मतलब, और आज का तो हाल ऐसा है, एंड राघव साहब इज एक्सपर्ट, यदा कदा, as and when government of India allows resumption of sports, live sport कहीं भी हो, उस पे तो मीडिया टूटने वाला है। मीडिया is hungry to look at live sport, and we are going to be under such media spotlight as and when sports resumes officially and at official levels in the country, that coaches are going to be in the limelight for sure. Sir, if you permit, can we wind up, or is there? Yes, sir. Yes, sir. You will be very. It will be very kind. You will be rescuing me. There are so many attendees, sir. I think it's for their benefit, sir. You are giving your valuable experience, sharing with them, sir. Sir, thank you very much, sir. Once again, giving your time for the coaches, for your valuable experience. It's my privilege, sir. बहुत धन्यवाद, sir. It's an honor, sir. आपका बहुत शुक्रिया. Thank you very much, sir. It's an honor, Raghav Saab. Thank you so much. हमारे दोनों पैनलिस्ट राव साहब और खोखर साहब इतने द्रोणाचार्य हैं और हिंदुस्तान की कबड्डी के पिलर हैं. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir.